हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद आप सभी को. माय नेम इज नंदिनी कृष्णा एंड आई एम द इंग्लिश फैकल्टी फॉर दिस बैच एंड दिस इज अ वेरी स्पेशल क्लास ऑन CDS. Yes. So let's not waste any time and let's quickly begin. And before we actually go on to the topic, let's quickly have a look at your exam pattern and syllabus. Okay. All right. So the first things first, let's start with some important details. So your exam is on the 21st of April. Duration of the exam is 2 hours for each section. Marking scheme is +1 for every correct answer and -1/3 for every wrong answer. This is -1/3. Okay. Now let's have a look at the exam pattern. So this is CDS exam pattern. There are 3 sections: English, General Knowledge and Maths. All 3 of them are for 2 hours each and the maximum marks are 100. Okay. So if you were to see the exam pattern for CDS OTA, it remains the same. Only thing is maths nahi hota hai isme. So English and General Knowledge both are for 2 hours each and maximum marks are 100 marks. ठीक है. English का syllabus, whether it is CDS or CDS OTA, it remains the same. So now let's quickly have a look at the syllabus for English, which is quite huge, right? See, तो मैं यहाँ side में आ गई हूँ so that you can see the full screen. So you have comprehension, fill in the blanks, spotting errors, rearranging sentences, active passive voice, sentence improvement, direct indirect speech, synonyms, antonyms, idioms, phrases and selecting words. So come to think about it, पूरी ग्रामर है और पूरी वोकैबुलरी है जो आपको करनी है. There is nothing that is not missed in this syllabus, right? So there is less time and we have to cover a lot, and English is not something that we can really avoid for CDS. So in today's class, let's focus on a very confusing topic which is called active passive voice, and I will try my level best to make it absolutely easy for all of you so that by the end of this class at least one portion of active passive voice is clear. Okay, so let's not waste any time and let's quickly dive in. Okay, so active passive voice में क्या क्या confusions होते हैं, कैसे होते हैं, let's quickly understand. So let's take this word here which is invite. ठीक है. अब अगर मैं किसी को invite, suppose there is a party and I am the person who's hosting the party, तो natural सी बात है कि अगर मैं invite कर रही हूँ किसी को तो कोई वो invitation को receive भी करेगा ना. That means if I am the doer, one second, if I am the doer of this action, मैंने अगर इस एक्शन को किया तो इस एक्शन को रिसीव करने वाला भी तो कोई होगा ना. और इसी प्रिंसिपल पे इस डूअर, एक्शन और रिसीवर, इन तीनों के प्रिंसिपल पे एक्टिव पैसिव वॉइस बेस्ड होता है, राइट? सो लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस. द फर्स्ट सेंटेंस सेज आई इनवाइटेड माई फ्रेंड्स फॉर अ पार्टी. इसका मतलब हु वॉज द डूअर? आई वॉज द डूअर. Who is the receiver? My friends are the receiver. Now, where is the problem in this? The problem is that active passive voice में students think कि बस इसको उल्टा कर दो. हमें ये रट्टा बहुत अच्छे से हमने मारा हुआ होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दो. फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट अंडरस्टैंड व्हाट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज, ये जो डूअर है वो सब्जेक्ट हो गए, जो रिसीवर है वो ऑब्जेक्ट हो गए. तो इस सेंटेंस में आई बिकम्स द सब्जेक्ट, माई फ्रेंड्स बिकम्स द ऑब्जेक्ट. So what do students do? Students convert this sentence like this: my friends invited me for a party. That means अब यहाँ पे जो यहाँ पे रिसीवर था, जो ऑब्जेक्ट था, वो बन गया डूअर स्लैश सब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं, जिसने पहले डूअर था एक्शन की, मैं बन गई ऑब्जेक्ट स्लैश रिसीवर. Now, please don't think that this is active voice and this is passive voice. No, absolutely not.
राइट ये दोनों बिल्कुल सेपरेट सेंटेंसेस हैं. एक्टिव पैसिव वॉइस में व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट वी नेवर चेंज द सेंस ऑफ द सेंटेंस, और इन दोनों में तो बिल्कुल सेंस चेंज हो रहा है. प्लीज हैव अ लुक. आई इन्वाइटेड माई फ्रेंड्स फॉर अ पार्टी. दिस मीन्स कि मैंने अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट किया था. लेकिन इस सेंटेंस में क्या हो गया? वॉट इज हैपनिंग इन दिस सेंटेंस? माई फ्रेंड्स इन्वाइटेड मी, मतलब मेरे फ्रेंड्स ने मुझे इन्वाइट किया था. तो अगर आप एक सेंस देखें तो भी बिल्कुल फर्क है. यहां मैं इन्वाइट कर रही थी, यहां मेरे फ्रेंड्स इन्वाइट कर रहे हैं. यहां पे मैंने फ्रेंड्स को इनविटेशन भेजा था, यहां पे मेरे फ्रेंड्स ने मुझे इनविटेशन भेजा. So this is not what active passive voice is, right? There are a certain set of rules that you have to follow, and most importantly you have to make sure that the sense of the sentence never changes. Okay, so what are the 3 rules? सिर्फ 3 रूल्स के साथ आप पूरी एक्टिव सेंटेंस को आप पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो विच आर दोस 3 रूल्स? लेट्स हैव अ लुक. So my rule number 1 is change subject to object and vice versa. जैसे कि my friends और जो मैंने इससे पहले आपको सेंटेंस बताया था उसमें सबसे पहला रूल क्या होगा? सब्जेक्ट विल चेंज टू ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा. इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे, बट फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक एट ऑल द रूल्स. द सेकेंड इज कन्वर्ट मेन वर्ब इनटू थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो इसका मतलब सबसे पहले तो मुझे वर्ब को कौन सा मेन वर्ब है उसे आइडेंटिफाई करने की जरूरत है. मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं हेल्पिंग वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, फिर से वो गलत हो जाएगा, है ना. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द मेन वर्ब एंड देन मेन वर्ब करेक्टली एंड देन चेंज इट टू द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. एंड द थर्ड रूल इज दैट डू नॉट चेंज द टेंस ऑफ द सेंटेंस. मतलब कि जो ये मेन वर्ब जिस सेंटेंस में है उसको नहीं चेंज करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और उसी के हिसाब से फिर सेंस ऑफ द सेंटेंस नहीं बदलेगा. ठीक है, तो अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. सो द एग्जाम्पल इज आई इन्वाइटेड माई फ्रेंड्स फॉर अ पार्टी. ठीक है, सो सबसे पहले लेट्स आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ओवर हियर. So this is my subject. ठीक है, फिर ये है invited, ये है verb. ओके, और यहां पे ये हो गया my friends, जो हो गया object. So I hope this is clear and I hope you are able to see this also. Subject, verb, object. ठीक है, now let's see the first rule, that is चेंज सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा का मतलब होता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, वहां पे गाड़ी रुक नहीं जाती है. वाइस वर्सा का मतलब होता है सब्जेक्ट को अगर हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे. ठीक है, सो दैट मीन्स माई फ्रेंड्स विल बिकम द सब्जेक्ट. ओके, एंड सब्जेक्ट दिस सब्जेक्ट विल चेंज इनटू ऑब्जेक्ट. तो आई जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो ये बन जाएगा मी. दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू रियली लर्न कि जब सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन जो होता है जब वो ऑब्जेक्टिव केस में जाता है तो क्या चेंज आता है वो आपको देखना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे माई फ्रेंड्स और मी हमने चेंज सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा ये हमने चेंज कर दिया. नाउ लेट्स अप्लाई द सेकेंड रूल. द सेकेंड रूल इज कन्वर्ट मेन वर्ब into third form of the verb. Now what is the main verb here? It's easy, it is invited. तो invited जो है what are the 3 forms? Invite is V1, invited is V2, and invited again it's a regular verb, so invited is V3. इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड, तो मतलब मेन वर्ब को, ये मेन वर्ब था, जब मैं V3 फॉर्म में यूज करूंगी तो ये बन जाएगा. ठीक, नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड रूल विच सेज दैट डू नॉट चेंज द टेंस ऑफ द सेंटेंस. मतलब कि ये यहां पे क्लियर है कि ये V2 फॉर्म में है, V3 फॉर्म में नहीं है. प्लीज रिमेंबर दैट
ये भी स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं. दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन इन मोर डिटेल व्हेन वी व्हेन वी डू इट इन क्लास, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है. कि जो V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है वो जो है एक्टिव वॉइस में V3 के साथ या तो हैज लगेगा या हैव लगेगा या हैड लगेगा. इनके साथ आप V3 यूज करते हो, पर यहां तो हैज हैव हैड कुछ भी नहीं लगा हुआ, यहां तो सिर्फ V2 लगा हुआ है, मतलब सिर्फ इनवाइटेड लिखा हुआ है. इसका मतलब ये V2 है, दिस इज नॉट V3, राइट. दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई. सो हम कह रहे हैं कि ये जो पास्ट टेंस में है तो मेरा जो पैसिव वॉइस में सेंटेंस आएगा वो भी पास्ट टेंस में रहना चाहिए. नाउ व्हेन यू कंबाइन ऑल दीज थ्री रूल्स, सी हाउ यू विल डू इट. सो द फर्स्ट विल बी माई फ्रेंड्स. माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स, मैंने यहां पे लिखा इनवाइटेड, और इनवाइटेड आई इनवाइटेड था ना बाय मी. अब यहां पे इसका टेंस ना बदले उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वॉज या वर. जी हाँ. सो व्हेन यू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जो बी के फॉर्म्स होते हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो बी के फॉर्म्स होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, हम इससे जो है टेंस को सेम रखते हैं. तो यहां पे क्योंकि ये प्लूरल है, ये आ जाएगा माई फ्रेंड्स वर इन्वाइटेड बाय मी फॉर अ पार्टी. Got it? Clear, everyone? I hope there's no problem here. Now let's understand. Now let's try and put this into use. मतलब हम कुछ questions देखते हैं. इतना अगर समझ में आ गया है तो जब हम MCQs करेंगे तो हम एक छोटी सी ट्रिक अपनाएंगे. पर उससे पहले let's have a look at a table. So this is my table. अब इस टेबल को आपको यूज कैसे करना है एक बार इसको देख लेते हैं. सो दिस मीन्स कि अगर मेरा एक्टिव सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में होगा तो मैं क्या करूंगी, पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए मैं ये यूज करूंगी, आइदर एम और आर और इज प्लस V3. अगर मेरा पास्ट सिंपल में एक्टिव सेंटेंस होगा देन आई विल यूज वॉज और वर प्लस V3. अगर मेरा फ्यूचर सिंपल में एक्टिव सेंटेंस होगा तो देन इट विल बी प्लस V3. सिमिलरली अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मेरा एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है तो उसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए दिस इज व्हाट आई विल यूज, इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस V3. पास्ट कंटिन्यूअस में मेरा एक्टिव सेंटेंस होगा तो ये बन जाएगा वॉज, वर, बीइंग प्लस V3. हाँ. फ्यूचर कंटिन्यूअस में अगर मेरा एक्टिव सेंटेंस है, प्लीज नोट दिस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में अगर मेरा एक्टिव सेंटेंस है तो पैसिव में वो कन्वर्ट नहीं होता है. देयर आर 4 टेंसेस जिसमें एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल है. सो लेट्स हैव अ लुक हियर. अभी कौन से वो 4 टेंसेस हैं, आई विल टेल यू. सो प्रेजेंट परफेक्ट में है तो मैं ये यूज करूंगी पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए. अगर ये पास्ट परफेक्ट में है तो हैड बिन प्लस V3 लग जाएगा, और अगर फ्यूचर परफेक्ट में है तो विल हैव बिन प्लस V3 लग जाएगा. सो द 4 टेंसेस इन विच you cannot change active to passive are of course future continuous, like I already told you, and the perfect continuous tenses. So present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous में active to passive नहीं change हो सकता, future continuous में भी change नहीं हो सकता. तो total मिला के हो गए 4 tenses जिसमें active to passive या एक्टिव टू पैसिव नहीं हो सकता. पैसिव नहीं हो सकता तो उसका एक्टिव सेंटेंस बनेगा ही नहीं. तो आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं. अगर आएगा तो नो चेंज एक ऑप्शन में होगा, आप उसको मार्क करेंगे. ठीक है. तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है लेट्स पुट इट टू यूज एंड लेट्स ट्राई एंड सॉल्व सम क्वेश्चंस. और क्वेश्चंस करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी, तो उससे आप पूरा इन टोटलिटी एक्टिव टू पैसिव वॉइस बहुत आराम से कर पाएंगे. ओके, लेट्स हैव अ लुक.
So it says Gandhi ji started the Quit India movement in 1942. Now please remember one thing, हाँ, कि जब भी हमारे पास ऐसे competitive exams में active passive voice आता है, please remember one thing. You have to identify whether the sentence is in active voice or in passive voice and then convert accordingly. Which means if the sentence is in active voice, you change it into passive. If it is in passive voice, you change it into active voice. ठीक है, ये बात सबको ध्यान रखनी है. So नाउ लेट्स फर्स्ट आइडेंटिफाई कि एक्टिव में है या पैसिव वॉइस में. गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट. गांधी जी ने ही शुरू किया था ना, मतलब गांधी जी ही एक्शन कर रहे थे. तो जहां पे सब्जेक्ट ही एक्शन कर रहा है वो एक्टिव वॉइस है ना, इसका मतलब मुझे इसे पैसिव में कन्वर्ट करना है. अब मुझे ये पता है कि पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए टेंस नहीं बदलना चाहिए, तो और ये पास्ट टेंस में है, तो मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि मैं वॉज वर प्लस V3 ढूंढूंगी अपने ऑप्शंस में. जब मैं को ये मिल जाएगा मैं उसे पूरा सेंटेंस को पढ़ूंगी, मैं मार्क कर दूंगी. सो आई डोंट हैव टू रीड ऑल द 4 ऑप्शंस. सो यहां से शुरू करें. द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी, गलत. हैड बीन गलत. वॉज बिन स्टार्टेड नहीं है. आंसर हमारा फर्स्ट वाला है क्योंकि यहाँ पे वॉज स्टार्टेड है, बट बिफोर मार्किंग दिस आंसर आई एम गोइंग टू रीड द कंप्लीट स्टेटमेंट टू ensure that the sentence is correct. The Quit India movement was started by Gandhi ji in 1942. Bas, that's it. 5 seconds mein your answer is done. ठीक है. Let's use this trick in the other sentences also. Gagan Narang and Vijay won bronze medals in the London Olympics. अब गगन और विजय ने ही जीते हैं, इसका मतलब एक्टिव वॉइस है. और यहां पे ये विन 1-1 होता है. अगेन व्हाट एम आई लुकिंग फॉर, आई इसको मैं कन्वर्ट करूंगी पैसिव में, तो ये क्या बन जाएगा, वॉज वर, वॉज और वर प्लस V3. आई एम गोइंग टू हैव अ लुक कहां मुझे वॉज वर प्लस V3 मिल रहा है. ये नहीं हो सकता, राइट. हैड बिन नहीं हो सकता, वर 1 हैव बिन 1 नहीं हो सकता, टेंस चेंज हो रहा है. मेरा आंसर ये होना चाहिए. लेट्स रीड द एंटायर सेंटेंस. Bronze medals were won by Gagan Narang and Vijay in the London Olympics. Your answer is 3. Okay? Easy peasy, no rocket science. अब हम थर्ड वाला अपने आप करने की कोशिश करेंगे. India is evolving a new plan to control her population. Now I'm standing right next to the board so that you can see the full screen. I'm giving you about 10 seconds. Do this yourself. Okay? Yes. All right. Let's have a look. India is evolving. हाँ, is तो मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3. ठीक है. इज इवॉल्व्ड गलत, हैज बीन इवॉल्व्ड गलत, राइट. वॉज बीइंग गलत, क्यों भाई, मैं अपना टेंस थोड़ी ना बदलूंगी. लास्ट वाला सही होना चाहिए, एक बार उसे रीड कर लो. A new plan is being evolved by India to control her population. Absolutely correct. Now please remember one thing. In all of this, अगर आपको tenses नहीं आते हैं ना, तो active passive voice करना बहुत मुश्किल है. Trust me on this one. If you don't know how to do tenses, then active passive voice becomes very very difficult. So of course जब आप क्लास में आएंगे तो सबसे पहले हम आपको verbs, मैं आपको verbs tenses कराऊंगी, उसके बाद मैं ये टॉपिक कराऊंगी, पहले नहीं कराऊंगी. So अगर tenses आता होगा तो ये और बिल्कुल बहुत easily हो जाएगा. ठीक है, चलिए let's have a look at the last question now. I'm giving you 10 seconds. Please finish it.
The modern means of communication have made life so much easier. Okay. Modern means of communication have made life so much easier. तो वो जो कम्युनिकेशन के मीन्स हैं, जो चैनल्स हैं, उसी से तो हमारी लाइफ इजी हुई है. इसका मतलब दिस इज एक्टिव वॉइस एंड आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पैसिव. और यहां पे बोला है हैव मेड, इसका मतलब है ये है प्रेजेंट परफेक्ट. सो इफ आई नीड टू चेंज इट, आई विल यूज हैज हैव प्लस बिन प्लस V3 एंड दिस इज व्हाट आई विल बी लुकिंग फॉर. हैड बिन नहीं हो सकता, मेरा टेंस चेंज हो रहा है. इज बीइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदल रहा है, ऑब्वियसली नहीं हो सकता. वॉज मेड, अगेन नॉट पॉसिबल, टेंस इज चेंजिंग. मेरा आंसर थर्ड होना चाहिए एंड आई विल क्विकली रीड द सेंटेंस एंड मार्क द आंसर. It says life has been made so much easier by the modern means of communication. Yes, my answer is 3. Third is my answer. ठीक है. So I hope this part of active passive voice is absolutely clear to all of you. It is not a problem anymore. Please remember the rules of active passive voice, but more than that, please remember that if you don't know tenses, if you have a problem in understanding tenses, active passive voice naturally will become very difficult. ये बहुत लंबा topic है. इसमें मैंने अभी आपको एक part कराया है इसका. Of course, there are other things that we have to do, which we will do once I see you in class. Okay, so thank you so much for joining. Thank you so much for watching the video. I hope you found it informative. I hope आपको ये video अच्छी लगी होगी, and I hope to see you all in class. Yes, and have longer classes with you. All right. Thank you so much, everybody. Bye bye.